Hello, welcome back. This is Progress with Prachi. I'm Prachi Soni and I will be dealing with the macroeconomics class 12th. And currently I'm covering this book, that is Introductory Macroeconomics by T.R. Jain and V.K. Hori. In this book, we have already covered the first 3 chapters of the book, that is what is macroeconomics, some concepts of macroeconomics, and national income and related aggregates. Currently, we are on chapter number 4, in which we are dealing with methods of calculating national income. And in the same chapter, we have already covered the first method, that is the value added method in the previous class. So if you're new to this video, if you haven't watched previous videos, I would request you to kindly go through those videos and then come up for this one, because this will be a continuation of the already taken classes. Now, so in the last class, we talked about value added method, in which we studied about the formula, that is value added minus the value of output minus the intermediate consumption. And to find out the value of output, there are certain formulas, which is product. The value of output is price of a quantity, price of the commodity, and quantity of the commodity. Price into quantity, price multiplied by quantity will be the value of output. So value added, and value added minus capital stock, that is closing stock minus opening stock, that is your change in stock. So there was this certain formula which we covered, by which we got GDP MP, and then we found out national income, that is NNP FC. Moving on to the income method, it is called distributed share method or factor payment method. income method को हम डिस्ट्रीब्यूशन शेयर, जो आपको सामान मिला उसको आपने किस तरीके से शेयर किया, एंड फैक्टर पेमेंट मेथड मतलब मैंने कुछ सर्विसेज दी, मैंने कुछ काम किया, उसके इन रिटर्न आई विल गेट सर्टेन मनी, आई विल गेट सम अमाउंट ऑफ money, I'll get some amount of payment. That will be my factor payment method. तो जब हमने क्लास में हमने बात करी थी कि जब हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. एक तो गुड्स और सर्विसेज जो बनाए गए हैं उनकी वैल्यू से, दूसरा उससे आपने जो इनकम कमाई उस इनकम से, और या फिर तीसरा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर कि उसने उस चीज को खर्च करने में कितना एक्सपेंडिचर किया. तो वैल्यू मेथड, income method and expenditure method. Now in this income method हम इसको हम factor payment method भी बोलते हैं. इस मेथड के हिसाब से जो नेशनल इनकम है वो फैक्टर पेमेंट्स के हिसाब से, यानी कि एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं उनको कितना पैसा मिला, कब वेजेस हो गई, सैलरीज हो गई, घर के बदले रेंट के, लैंड के बदले आपको रेंट जो मिलता है, इंटरेस्ट जो मिलता है कैपिटल के बदले, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले जो आपको प्रॉफिट मिलता है, इन चीजों को हम कैलकुलेट करते हैं. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, interest and profit to the owners of factors of production. owners कौन है? लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. ड्यूरिंग एक अकाउंटिंग ईयर में हमें पता है कि जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स होते हैं. हाउएवर जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को कैलकुलेट करते हैं जो who are the normal residents of the country, जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं, जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स जो हमारी कंट्री में रहते हैं. National income is estimated as the sum total of factor incomes. National income क्या है? Sum total of factor income, जितने भी factor incomes है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दी कंट्री, जो हमारी कंट्री में नॉर्मल रेसिडेंट्स रह रहे हैं, उन्होंने जो भी कमाया ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं. जैसे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को नेट से डोमेस्टिक से नेशनल निकालने में माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल निकालने में माइनस करते हैं, दैट इज योर ऐड करते हैं NFI, नेट फैक्टर इनकम. सो दैट इज योर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री. सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम. तो जितना भी फैक्टर इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी कंट्री में जनरेट होता है, चाहे यहाँ के रहने वाले लोग करें या फिर यहाँ के ना रहने वाले लोग करें, उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हैं. जब नेट फैक्टर इनकम को डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे तो उससे हमारी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी. सो नेट फैक्टर इनकम
अब हमने वो सर्कल्स करे थे दैट अगर हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट जाना है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज स्मॉलर, नेशनल प्रोडक्ट इज लार्जर। जब हम छोटी चीज से बड़ी चीज में जाएंगे तो हम एडिशन करेंगे। डीपी से एनपी जाने के लिए हम प्लस एनएफआई करेंगे, एनपी से एफपी डीपी जाने के लिए हम माइनस एनएफआई करेंगे। एनएफआई इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम -2, तो फ्रॉम -2। वट आर फैक्टर इनकम्स? फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं? फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो पर्सन अर्न करता है अपनी सर्विसेज के बदले, उसको जो रिवॉर्ड, जो उसने आपने जो काम किया, आपने जो सर्विसेज करी, उसके बदले जो आपको पैसा मिल रहा है, दैट इज अ फैक्टर इनकम। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेज और सैलरी, ये वेज और सैलरी के फॉर्म में हो सकती है, रेंट के फॉर्म में हो सकती है, इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकता है और प्रॉफिट के फॉर्म में हो सकता है। ध्यान रखना है, फैक्टर इनकम आर दी ओनली अर्नड इनकम, जो आपने कमाई है, जो आपको फ्री में मिलती है, जिसके लिए आपने कुछ किया नहीं है, दैट इज नॉट अ फैक्टर इनकम, दैट इज अ ट्रांसफर पेमेंट और अ ट्रांसफर इनकम। तो हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम सिर्फ फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड करते हैं, मतलब वो इनकम जो आपने कमाई है, जो आपने अर्न करी है। इट डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम विच इज नॉट अर्नड और फॉर विच अ फेवर सर्विस हैज नॉट बीन रेंडेड। ये वो इनकम नहीं होती है जिसके बदले आपने कोई सर्विस नहीं कैलकुलेट करी है, वो इनकम फैक्टर इनकम नहीं होती है। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन मिलती है आपको, इट इज नॉट एन अर्नड इनकम, आपने कमाया नहीं है, ये सिर्फ सरकार आपको हेल्प कर रही है। सच रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट, जो और जिन चीज़ों के लिए आप कुछ करते नहीं हो फिर भी वो आपको पैसा मिलता है, उनको हम ट्रांसफर रिसिप्ट्स बोलते हैं और ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं, और इनको हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ फैक्टर इनकम्स इंक्लूड करी जाती हैं, ट्रांसफर इनकम्स इंक्लूड नहीं करी जाती हैं। नाउ क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम की भी अलग अलग टाइप्स और क्लासिफिकेशन होती हैं, जैसे कि सबसे पहला हम बात करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यानी कि कंपनसेशन, एम्प्लॉय जो आपके यहाँ पे काम करता है उसको आपने कुछ दिया इन रिटर्न टू हिज और हर सर्विसेज, को जब आपने इन रिटर्न कुछ दिया तो उसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोलते हैं। ये आप वेजेस एंड सैलरी इन कैश भी हो सकता है। इन कैश का मतलब इट रेफर्स टू कैश जो आपने उनको पे किया, सैलरी अकाउंट में डाला या कैश दिया, जो भी किया। वेजेस और सैलरीज जो आपने उनको डायरेक्टली मनी के फॉर्म में दे दी। नेक्स्ट इज पेमेंट इन काइंड। कभी कभार जैसे कि कहीं कहीं जॉब करने पे आपको वो अकोमोडेशन फ्री देता है, रहने का खर्चा करते हैं, मेस की सर्विसेज होती हैं कहीं कहीं पे कि तीनों टाइम का मील आपको फ्री मिलेगा। सो दीज थिंग्स आर पेमेंट इन काइंड। ये इसके लिए आपको पैसा नहीं मिल रहा, बट अगर आपको वो रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहे हैं, अगर आपको नहीं देते कहीं और देते तो आपका खर्चा लगता है 10,000 12,000 जो भी है। सो दैट इज पेमेंट इन काइंड। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। आपका जो एम्प्लॉयर होता है जिसने आपको काम पे रखा है, वो आपके लिए पीएफ भरता है, प्रोविडेंट फंड भरता है, कि जब आप कंपनी छोड़ के जाओगे तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ पैसा दिया जाएगा, एज अ पीएफ अमाउंट होती है। सो सच पेमेंट जैसे कि प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ये एम्प्लॉयर्स भरता है अपनी एम्प्लॉय के हिसाब से, तो वो कट जाता है आपकी सैलरी, कुछ पोर्शन आपकी सैलरी से कटता है और कुछ जो एम्प्लॉयर होता है वो खुद देता है। पेंशन ऑन रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट होने पे जो कुछ पेंशन मिलती है। सो ये सारी चीजें अब ये याद रखना है आपको, टू बी स्पेसिफिक, ओल्ड एज पेंशन जो है वो आपको बूढ़े होने की वजह से मिल रही है, वो आपकी एज फैक्टर की वजह से आपको मिल रही है। बट ये जो रिटायरमेंट पे आपको पेंशन मिल रही है, दिस इज योर सर्विसेज के बदले आपको पेंशन मिल रहा है। सो ये डज नॉट रेफर टू ए ओनली पेंशन पेमेंट्स एज अ पार्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब आपने सर्विस करी है उसके बदले में आपको पेंशन मिल रही है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में। ऑपरेटिंग सरप्लस, तो सबसे पहले हमने बात करी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस, ओएस जिसको बोलते हैं, सीओई, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस ओएस एंड मिक्स्ड इनकम एमआई। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? नाउ ऑपरेटिंग सरप्लस इट रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप। आपकी प्रॉपर्टी, आपने जो लैंड है उसके बदले जो आपको रेंट वगैरह मिला, और प्रॉफिट वगैरह जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बदले मिला, उसको जब आप ऐड करोगे तो उसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की जो अमाउंट होती है उसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कुछ चीज चल रही है, उससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ, सरप्लस हुआ, दैट इज योर ऑपरेटिंग
surplus. Now dividends, that part of the profit which is distributed among the stakeholders, it is known as distributed profit. Dividends क्या होते हैं? वो प्रॉफिट का वो पार्ट जो आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो. याद रखना है, प्रॉफिट का वो पार्ट, सारा प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो आपने शेयर होल्डर्स को दिया, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं, उसको हम डिविडेंड्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स. एक कॉर्पोरेट टैक्स होता है दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स. ये वो पार्ट है जो कंपनीज सरकारों को देती है, सरकार को देती है एज अ प्रॉफिट टैक्स. जो उन्होंने काम किया उसके बदले प्रॉफिट जो कंपनी को हुआ, वो प्रॉफिट चुकाने के लिए सरकार को एक प्रॉफिट टैक्स भरते हैं. एंड देन देयर इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. अभी जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट का वो पार्ट है जो फर्म खुद के लिए रखती है, अपने फ्यूचर यूज के लिए रखती है. पर्टिकुलरली कुछ फ्यूचर में एक्सपेंसेस हो जाए या कॉर्पोरेट की सेविंग्स करने के लिए, इसको हम कॉर्पोरेट सेविंग्स ही बोलते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं. तो घर का रेंट हो गया और इंटरेस्ट हो गया. प्रॉफिट जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं. सबसे पहले तो हमने वेजेस और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखा. उसमें हमने देखी वेजेस एंड सैलरीज जो आप कमा रहे हो. पेमेंट इन काइंड, जिसके लिए जो पैसा नहीं है, यानी कि रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, फ्री मील्स हो गई, कैब सर्विसेज हो गई, जिसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा है पर वो आपको बेनिफिट कर रहे हैं. देन जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज में, जैसे कि पीएफ वगैरह हो गया. एंड देन जो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलती है. ये 4 चीजें आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में इंक्लूड होंगी. नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस में हम रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं. नाउ फॉर द प्रॉफिट 3 तरह का होता है. पहला प्रॉफिट तो वो प्रॉफिट हो गया जो मैंने अगर मान लो 10,000 रुपीज अर्न करे हैं. इन 10,000 रुपीज में से जो मेरे कुछ 3 लोगों के शेयर्स हैं, 3 लोगों ने मेरे कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं. मान लो 50% शेयर मेरा है और 50% उन तीनों का है या चारों का है. 3 लोग आए, तीनों का है. तो अब जब मैंने 10,000 रुपए कमाए तो 10,000 का जो 5,000 होगा, क्योंकि 50% शेयर उनका है, तो जो 5,000 होगा वो मेरे डिविडेंड्स में अपने शेयर होल्डर्स के साथ प्रॉफिट शेयर कर दूंगी. रिमेनिंग 5,000 बचे मेरे पास. अब इस 5,000 में से कुछ प्रॉफिट, 5,000 नहीं बचे. आप देखो 3 पार्ट होते हैं अलग अलग. ऑलमोस्ट टैक्स कटने के बाद ही प्रॉफिट्स डिवाइड होते हैं. कुछ पार्ट जो होगा सरकार ने टैक्स मांगा होगा, 10% या 1% या जितना भी परसेंट सरकार ने टैक्स मांगा होगा, वो सरकार को टैक्स भी देना है. मान लो 1,000 रुपए मैंने सरकार को टैक्स दे दिया. अब बचे 4,000 रुपीज. Now these 4,000 rupees are the undistributed profits of the company. मेरे खुद के प्रॉफिट है मेरी कंपनी के. इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ खर्चा करना पड़े, कुछ अनफॉर्सीन सिचुएशन हो जाए जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं है, ऑन ऑल दीज केसेस हम ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को यूज करेंगे. जो हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम ये तीनों प्रॉफिट्स की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो डिविडेंड्स हो, चाहे वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो और चाहे वो प्रॉफिट टैक्स हो. These are the 3 components: compensation of employees, operating surplus. Next is your mixed income. Mixed income refers to the income of the self-employed person using their own labor. मिक्स्ड इनकम वो इनकम होती है जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, यानी कि खुद ही, अब जैसे ये यूट्यूब क्लासेस, अभी तो मैं आई एम टीचिंग इन अ स्कूल, इफ आई एम नॉट टीचिंग इन अ स्कूल, मैं खुद ही यूट्यूब से पढ़ाऊँ और मेरी सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ. मैं खुद ही, जैसे बिजनेस जो करते हैं लोग, बिजनेस कर रहे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके ऊपर कोई एम्प्लॉयर नहीं है, उनको कोई वेजेस सैलरीज नहीं मिल रही हैं, तो उसको हम मिक्स्ड इनकम बोलते हैं. लेबर का पैसा भी खुद ही, जैसे अगर मेरी एक छोटी सी दुकान है तो उसमें जूते बेच भी मैं ही रही हूँ, जो जमीन है वो भी मेरी ही है, इन्वेस्टमेंट जो थोड़ी बहुत करी है वो भी मैंने अपनी ही करी है, और जो प्रॉफिट मिल रहा है वो भी मेरा ही है. सो मैंने फैक्टर इनकम्स भी मेरी है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी मेरे है, दोनों चीजें मेरी ही हैं. सो इस केस में हाउस होल्ड एंटरप्राइज होती है मेजरली. इस इनकम को हम मिक्सचर ऑफ इनकम बोलते हैं, क्योंकि इसमें वेजेस भी इंक्लूड होती है, रेंट भी इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है और प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है. दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज मिक्स्ड इनकम. सेपरेट इसमें वेजेस को अलग से, रेंट को अलग से निकालना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो मार्केट से नहीं खरीदे गए हैं, वो खुद के हैं, हाउस होल्ड के खुद के हैं.
As noted earlier, sum total of factor income generated within the domestic territory of country is called NDPFC, net domestic product at factor cost, और simply domestic income. तो जब domestic income निकालनी होगी, domestic income का aggregate क्या होता है? NDPFC. नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको बोला जाएगा तो आप निकालोगे NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नाउ नेशनल इनकम इज फाउंड आउट टू बी एडिंग. नेशनल इनकम कैसे निकलेगी? NDPFC से जब हम उसमें NFIA को ऐड कर देंगे तो NNPFC निकल जाएगा. तो बेसिकली जब आप इन सारी चीजों को, किन सारी चीजों को, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को ऐड कर दोगे तो उससे आपकी डोमेस्टिक इनकम निकलेगी, उससे आपकी NDPFC निकलेगी. NDPFC में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करने से आपकी नेशनल इनकम निकलेगी, दैट इज योर NNPFC. कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी होती हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, कल करने से पहले. सबसे पहली चीज जो ट्रांसफर अर्निंग होते हैं, हमने पहले ही देखा कि जिनके बदले आपने कुछ किया नहीं है, जिनके बदले आपने कुछ काम नहीं किया है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप्स, पॉकेट एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती हैं क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं. इनके होने से इकोनॉमी में किसी भी तरीके की कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है. However, as already noted, रिटायरमेंट पेंशंस याद रखना है, पहले ही बोला गया है कि जो रिटायरमेंट पेंशन होती है, यानी कि आपको रिटायर होने पे जो पेंशन मिलती है वो इंक्लूड होती है क्योंकि वो आपने जो सर्विसेज करी है कंपनी के लिए उसके रिटर्न में आपको दी जा रही है. इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, यानी कि आपने कहीं चोरी कर ली, कुछ गैम्बलिंग कर लिया, ये भी आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी. एज रिगार्ड्स इनकम जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ ब्लैक मनी, जो आप ब्लैक मनी, लोग काला पैसा, काला धंधा बोलते हैं ना, दूसरे 2 नंबर की पैसा है, 2 नंबर की इनकम है, वो भी आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है क्योंकि कोई एस्टिमेशन नहीं है, कुछ हमारे पास डेटा क्लियर नहीं है अबाउट दिस सोर्स ऑफ इनकम. ओके, थर्ड इज कमीशंस जो आपको दी जाती हैं सेल और परचेज ऑफ सेकंड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स, यानी कि जब आपने ऑलरेडी यूज्ड गुड को बेचा तो उसकी वैल्यू तो हम ऐड नहीं करते हैं. यानी कि अगर मैंने फोन लिया और मैंने वो फोन रीसेल किया तो वो जिस पैसे में मैंने रीसेल किया उस पैसे को इंक्लूड नहीं किया जाएगा. बट अगर उसको रीसेल करने पे मुझे कुछ कमीशन मिला है देन दैट मनी विल बी इंक्लूडेड. वो मनी कैलकुलेट करी जाएगी नेशनल इनकम में क्योंकि उससे एक वैल्यू ऐड हो रही है, वो रिवॉर्ड है. मैंने जो सर्विस करी आपके पैसे एक्सचेंज कराने में, वो एक तरीके का रिवॉर्ड है जो मुझे मिला. ब्रोकरेज जो होती है, जैसे भाई सेम फॉर जब आप घर वगैरह ब्रोकर्स होते हैं, जब आप शेयर्स या बॉन्ड्स बेचते हो तो ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है ब्रोकरेज. नेक्स्ट, इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स, जैसे कि लॉटरी लग गई, कभी आपने कोई कूपन लिया, उसमें आपको कोड मिल गया, 500 रुपीज ऑफ हो गया, 1000 रुपीज ऑफ हो गया, ये सारे आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते क्योंकि इनसे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो रही है. इनको हम आपने कमाए नहीं है. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी, ये फैक्टर इनकम नहीं है. नेक्स्ट इज इम्प्यूटेड रेंट. इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है? अगर मैंने अपनी खुद की ही जमीन पे अपनी दुकान खोल ली, कुछ शॉप खोल ली, तो मैं खुद को रेंट तो नहीं दे रही हूँ पर उसका कुछ अमाउंट होगा, कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू को हम इम्प्यूटेड रेंट बोलते हैं. उस वैल्यू को हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में काउंट करते हैं. Corresponding to production for self-consumption, there should be generation of income in the company. It should take into account. जब आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, खुद के लिए कुछ प्रोड्यूस करते हो, तो वो भी इनकम में कुछ एडिशन हो रही है और इसीलिए उसको हम इंक्लूड करते हैं. कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ये सारे आपके कॉर्पोरेट के प्रॉफिट्स में आता है. जब आप प्रॉफिट्स को नेशनल इनकम में डाल रहे हो तो ये सारी चीजें, अगर आपको मान लो चारों चीजें अलग अलग दी हैं, एक तो दिया हुआ है प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, फिर दिया हुआ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, फिर दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और फिर दिया हुआ है टैक्स. इन दिस केस इन तीनों का कोई मतलब नहीं है बिकॉज आपको प्रॉफिट्स ऑलरेडी दिया हुआ है. प्रॉफिट्स इज अ कंपोनेंट विच इंक्लूड्स ऑल 3 थिंग्स. अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और ये तीनों चीजें दी हुई हैं, इन तीनों की वैल्यू आप इग्नोर करोगे और सिर्फ इसकी वैल्यू को इंक्लूड करोगे. चारों की वैल्यू इंक्लूड करने से आपका आंसर गलत हो जाएगा. इन केस प्रॉफिट नहीं दिया होता है तो इन तीनों की वैल्यू को आप
ऐड करोगे जिससे आपकी प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, एंड देन दैट वैल्यू शुड बी एडेड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. Income tax is paid out to the compensation of the employees. It should not be added in the estimation of the income tax. आप अपने जो आपको मिल रहा है उसमें से निकाल देते हो, वो इंक्लूड नहीं होगा. वेजेस एंड सैलरी चाहे कैश में मिले, पैसे की फॉर्म में या काइंड के फॉर्म में, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन करे एम्प्लॉय, ये सारे कंपोनेंट्स शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड. अगर आपको वैसे ही जैसे कि अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, पेजेस एंड सैलरीज दिया है, पेमेंट इन काइंड दिया है, एंड आपको सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज भी दिया हुआ है. इन दिस केस आपको ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की वैल्यू दी हुई है. यू डू नॉट नीड टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ अदर 3 थिंग्स. इन केस अदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की वैल्यू नहीं दी है तो तीनों की वैल्यू ऐड करोगे, उससे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की वैल्यू आएगी, एंड देन दैट विल बी एडेड विद ऑपरेटिंग सरप्लस एंड with mixed income. जितने भी टैक्सेस सरकार रिसीव करती है एज कंपल्सरी टैक्स ट्रांसफर पेमेंट्स, जो सरकार को रिसीव होते हैं वो ट्रांसफर पेमेंट्स के बदले, ये सारे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में इंक्लूड नहीं करते हैं. सो दैट्स इट अबाउट द इनकम मेथड. यू कैन फाइंड सर्टन प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑनलाइन और आप वो क्वेश्चंस कर सकते हो खुद से. आई विल ट्राई टू गिव सर्टन प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपको करना हो, सो यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस और यू कैन प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑन योर ओन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.